Good morning. Praise the Lord to all of you. I hope you are doing well. Because grace of God. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मौका मिला है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप वचन सुनने के लिए बैठे हैं। और बैठना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे भी पता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Shall we close our eyes? Praise the Lord. These verses. Our Heavenly Father, we thank you for this special time. Thank you for this opportunity to learn your word. Almighty God, and omnipresent God, the Master of sky and the earth. I thank you for this special time. I come to you. I am starting your message. Please help us. I come to you today asking for your guidance, Lord. Please help our word, sharing your message. Please help me through wisdom and your spirit, Lord. I thank you for this. I thank you for this opportunity. I pray in Jesus' mighty name. Amen. आइए वचन में जाने से पहले हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। रेवलेशन हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वचन पढ़ने के बाद हम जाएंगे। Revelation chapter 3 verse 13. Revelation chapter 3 verse 13. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। कोई इंग्लिश में भी पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। Revelation chapter 3 verse 13. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. हालेलुया। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये वचन को बताता है कि जिसके पास कान है वो सुन ले। हालेलुया। तो हमारे पास सबके पास कान है, इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इस वचन हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये वचन मुझे अगुवाई हुआ, इसलिए मैंने पढ़ा और आपको और पढ़ेंगे हम यूहन्ना से रचित सुसमाचार, The Gospel according to John chapter 16 verse 16 to 24. यूहन्ना से रचित सुसमाचार उसका 16 से लेके 19 तक कोई बोलिए। Gospel according to John chapter 16 verse 16 to 24. A little while and you will see me on longer, and again a little while and you will see me. So some of his disciples said to one another, what is this that he says to us? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. And because I am going to the Father, who they were saying, what does he means by a little while? We do not know what he is talking about. Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, is this what you are asking yourselves? What I mean by saying a little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. Truly, truly, I say to you, I will keep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. When a woman is giving birth, she has sorrow become her hour has come.
but when she delivered a baby, she no longer remembers a quiz for a joy that a human being has been born into the world. Also, you have sorrow now, but I will see again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy from you. In that day you will ask nothing from me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask in Father's name, ask of the Father in my name, He will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Amen. Hallelujah. आज का टॉपिक है द डिसाइपल्स सॉरो एंड जॉय. हालेलुया. शिशु लोगों का दुख और आनंद, इसका आज हम देखेंगे. और अलग अलग भाग किया है मैंने. पहला भाग है जीसस डेथ एंड रिजरेक्शन, और दूसरा है डिसाइपल्स सॉरो एंड जॉय, एंड तीसरा है प्रेयर एंड जॉय. हालेलुया. तो हम पहला वाला पॉइंट देखेंगे कि यहाँ हिंदी में भी पढ़ते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे. तब उसने कुछ चेलों ने आपस में से कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे. हालेलुया. ये जब यीशु मसीह जब ये क्रूस पर चढ़ाने से पहले, मतलब उनको जो जन्म देने वाले उनसे पहले ये बात उन लोगों को, चले लोगों को ये बताता है कि थोड़ी देर में मुझे आप ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में देखोगे करके. तो ये बात सुनकर चले लोग बहुत मतलब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है. मतलब यीशु मसीह ऐसे ही बात कर रहा था बहुत सारा दृष्टांत में, तो वैसे यहाँ भी बातें किया हुआ है. तो ये बात उनको बताता है कि ये किसके बारे में. तो कंफ्यूज हो गए, उनको पता नहीं चला कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है. लेकिन ये एक यहाँ 16 से लेकर 20 तक में एक वर्ड उपयोग किया गया है कि सोरो. मतलब एक बहुत दुख भरा एक शब्द है ये है कि ये ऐसा बात सुनकर बहुत दुख लगता है किसी को. मतलब कि एग्जाम्पल की कोई मतलब अगर किसी ने मतलब दिया कि आज ये सब मतलब आज ये बिल्डिंग सब गिरने वाला और सब मर जाने वाला, वो तो और टेंशन हमको आता है, वो वाला शब्द ये सोरो है. और ये सोरो शब्द वर्ड इंग्लिश से आता है और उसका असली वर्ड है शॉक. हालेलुया. तो उसका बहुत गहरा से उसका मतलब है कि दुख या विलाप या दर्द. हालेलुया. तो ये इंग्लिश से आता है, तो उसका असली मतलब दुख या विलाप या दर्द. नहीं तो सोरो इज फीलिंग डीप सैडनेस. हालेलुया. मतलब गहरा दुख, नहीं तो गहरा दर्द, नहीं तो गहरा विलाप. मतलब कि बहुत कुछ गहरा, अभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं. इससे भी गहराई, इससे और कोई शब्द नहीं, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मतलब एक गहरा डीप मतलब दर्द होने वाला है ऐसा. तो ये सोच में पड़ गया और सोर करके यहाँ वर्ड उपयोग किया गया है. और आप देख सकते हो उसमें यहाँ 16 से 20 में अंदर देख सकते हो इंग्लिश में सोरो शब्द, और उसमें देखेंगे तो विलाप या दर्द या दुख उपयोग किया गया. हालेलुया. तो यहाँ ये ऐसा टेंशन में पड़ गए कि उनको मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, वो सोच में पड़ गए. और मैं भी ये पढ़ते पढ़ते सोच में पड़ गया कि ये किसके बारे में बात कर रहा है और क्यों ऐसा बोल रहा है और बोलने का कारण क्या है. तो ये यीशु मसीह उनको मतलब जो क्रूस पर चढ़ने के बाद, मर जाने के बाद मतलब रोंगे करके भी लिखा हुआ है. मतलब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने के बाद मर जाएगा, उसके बाद जी उठेगा, उसके बाद दिखाई देगा करके. हालेलुया. तो ये वचन का ये मतलब बताता है कि यीशु मसीह मरने के बाद जब मर जाएगा तब बहुत लोग मतलब कि दुखी होंगे. सैडनेस नहीं तो सोरो, मतलब बहुत दुख होगा. और दुख होने के बाद मतलब बहुत कुछ लोग रोएंगे करके. लेकिन उसके बाद इसके बाद जब मुझे देखोगे, मतलब कुछ समय मुझे न देखोगे, उसके बाद कुछ समय में मुझे देखोगे. हालेलुया. तो यहाँ ये शब्द ये बताता, तो ये आनंद जब बताता है कि
जब मतलब यीशु मसीह जब मर जाने के बाद मतलब बहुत लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोग खुश हुए, लेकिन जो चेले लोग थे वो बहुत निराश थे। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया गया, हम साथ में सेवा कर रहे थे और हमारा गुरु करके बुलाते थे, तो हमारा गुरु को अभी मारने वाले हैं करके बहुत दुख में गहरा मतलब स्वरों में पड़ गए। हालेलुया। और एक दुख भरा उनके जीवन में मतलब ये पहले मरने मतलब क्रूस पर चढ़ाने के पहले ये बात किया गया। हालेलुया। तो ये बात अभी हम देख सकते हैं कि कहाँ ये बात पूरा हुआ। हालेलुया। उसका यूहन्ना से रचित सुसमाचार उसका 20 देखेंगे। तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 20 वर्स 20। When he had said this, he showed them his hand and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Amen. हालेलुया। यहाँ जब देखते हैं कि यूहन्ना से रचित सुसमाचार उसका 20 में जब यीशु मसीह जब मरने के बाद जी उठा, उसके बाद उन चेले लोगों को दिखाई दिया। उसी तब ये हम देख सकते हैं कि वहाँ पूछा जा रहा था कि जब वो बहुत आनंदित होंगे। तो यहाँ आगे हम देख सकते हैं कि वो आनंदित भी हो गए। रिजॉइस या जॉय यहाँ बीच में पढ़ते हैं कि और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। और यहाँ देख सकते हैं कि हम उसके बाद बहुत लोगों का विश्वास भी बढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि पहले जब गुरु करके जो मतलब गुरु करके पुकारते थे, लेकिन प्रभु करके फिर यहाँ प्रभु का मतलब कि लॉर्ड, तो यहाँ प्रभु करके। और हम पहले देखते हैं बहुत सारा चमत्कार किया और बहुत सारा आंधी को शांत किया, तब हे गुरु करके पुकारते थे। हालेलुया। तो यहाँ फिर है प्रभु करके यहाँ लोगों ने विश्वास भी किया और चेले लोग सब विश्वास करते थे, लेकिन उसमें से जो थॉमस था वो विश्वास नहीं करता था, उनके साथ सेवका ही करता था। लेकिन और लोगों ने सेवका ही नहीं किया, और उसके बाद मर जाने के बाद लोगों ने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है करके। तब लोगों ने तब उसके बाद उनको कई दिनों तक मतलब शायद बीच में कितना दिन तक मिला नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों में मिले नहीं, और उसके बाद मिले तब मतलब हथेली में जब तक मैं उंगली ना डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। तो ऐसा वाला एक सेरा था ये कि जब मतलब देखने के बाद मैं उंगली डालूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तो वैसे यहाँ भी उनका जब मरने के बाद जी उठने के बाद ये चेले लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, और उसके बाद ये जो थॉमस था उसका विश्वास ज़्यादा बढ़ गया। हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने जो बोला वो यहाँ ही पूरा हो गया 3 दिन के बाद। हालेलुया। तो इसका मतलब इस इतने वचन में से हमको ये सीख मिलता है कि जो परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ बोला और हुआ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ बोला कि तुम थोड़े दिन में मैं थोड़े देर के लिए ना आपको मिलूंगा और थोड़ी देर में फिर मिल जाऊंगा करके। हालेलुया। तो उसके बीच में कितना दिन हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मर जाने के बाद 3 दिन के बाद ये जी उठा करके है, तो ये फिर उसके बाद बहुत आनंदित हो गए करके। हालेलुया। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं यूहन्ना 20 में देख सकते हैं कि वहाँ आनंदित हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर मतलब मसीह जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। तो इस वचन से हमको ये सीख मिलता है कि परमेश्वर हमको भी वादा करके गया। हालेलुया। कि मैं फिर से आपको लेने के लिए आऊँगा करके। हालेलुया। उसका मतलब है इस वचन से हम सीखते हैं कि जो बोला वो होगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ये कंफ्यूज में है कि यीशु मसीह आने के लिए बोल रहा है, लेकिन कब का कितना साल हो गया अभी। तो यीशु मसीह आने से लोग बोलते हैं ना 2000, लेकिन अभी तो हो गया 2025 साल हो गए। हालेलुया। तो मतलब 2025वां साल चल रहा है। हालेलुया। तो इतने समय तक नहीं आ रहा है। और जब हम पढ़ते हैं, जब प्रेरितों की एपिस्टल में देखते हैं, जब ये पौलुस उन लोगों को समझाता है, तब बहुत लोगों ने क्या किया कि यीशु मसीह आने वाला है और सब कुछ रख के भी क्या करेगा करके। हालेलुया। और वहाँ लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे से जो उनके
लिया, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला करके प्रचार किया हुआ। तो बहुत लोगों ने बांट दिया और उनके पास बहुत बांट के थक गए क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया, हालेलुया। तो वैसे हम पढ़ते हैं कि एक यीशु मसीह के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर, 1000 साल के बराबर, हालेलुया। तो वैसे ही यहाँ देखते हैं कि वैसे यीशु मसीह आता है तो उनकी मतलब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मतलब जो स्वर्ग के समान आएगा करके लिखा हुआ, तो वो स्वर्ग के समान आएगा। तो जैसे यहाँ भी हमको वादा, जिस प्रकार से यहाँ चेले लोगों को वादा किया तो वहाँ उनको मिला, और हमको भी वादा किया कि मैं फिर से लेने के लिए आऊँगा, हालेलुया। तो जो मतलब कि लेने के लिए आऊँगा तो मतलब जैसे नहीं कि जो मिला उसको उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा पूरा बाइबल का ऐसा देख सकते हैं कि एक बाइबल पूरा नियम का भरा हुआ है, हालेलुया। वो नियम से अगर हम चलेंगे, उस नियम से हम पालन करेंगे, इस नियम से अनुसार चलेंगे, हम एक दूसरे के ये नियम को बारे में बताएंगे। जैसे कि तुम वचन में लिखा है कि जैसे एक ज्योति के समान बनो करके, हालेलुया। तो जिस प्रकार से ज्योति है वो खुद मतलब सिर्फ बल्ब को ही नहीं दिखाई देता, लेकिन पूरा रूम को दिखाई देता है। तो वैसे ही ये सुसमाचार मतलब लोगों को बताना है, और जो मतलब जो प्रकाश हमको मिला वो लोगों को भी बताना है, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब यहाँ वादा किया तो वो पूरा हुआ। और दूसरा टॉपिक देखें तो उसके अंदर 16 का 20 से लेकर 22 तक, हालेलुया। डिसेबल सॉरो एंड जॉय, हालेलुया। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, निकालेंगे सब 16 का 20 से लेकर 22 तक पढ़िए। Somebody stand up and read. 20 से लेके 22 तक। Truly, truly, I say to you, you will keep and lament, but the world rejoice. You will sorrowful, but your sorrow will turn into joy. When a woman is giving birth, he has sorrow because her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remember at due for joy that human being has born into the world. So also you have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy from you. हालेलुया। यहाँ 20 से लेके 22 तक पढ़ते हैं। उसका एक बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि प्रसव करके हिंदी में है और इंग्लिश में डिलीवर्ड, हालेलुया। तो उसका अर्थ है कि जन्म देना या पैदा करना, हालेलुया। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जब एक स्त्री या एक औरत एक बच्चे को जब जन्म देती है या पैदा करती है तब बहुत गर्व होता है, हालेलुया। जब मतलब जन्म देती है तब कितना दर्द होता है वो अगर पूछना है तो हम हमारी माँ से या किसी से भी पूछ सकते हैं, हालेलुया। तो दर्द होने के बाद जब दर्द होता है बहुत कुछ दर्द होता है कि मैं क्या करूँ करके उनके मतलब मन में ऐसा होता है। हमने नहीं महसूस किया, लेकिन अगर पूछना है तो आपकी मम्मी या पापा को पूछ सकते हैं, हालेलुया, कि उनका मतलब दर्द कितना होता है। तो वैसे ही यहाँ एक एग्जाम्पल देकर ये सचमुच में ये कहानी लेकिन नहीं एक एग्जाम्पल बता के, क्योंकि यीशु मसीह बहुत सारा जगह में दृष्टांत बताकर समझा देते हैं, हालेलुया। तो यहाँ भी एक बच्चा मतलब एक स्त्री का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे को जब जन्म देखती है तब बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं कहती है कि मैंने बहुत आपको या मुझको कभी नहीं कहती है कि मैंने बहुत दर्द से आपको पैदा किया करके, हालेलुया। कभी मैंने मेरी माँ को नहीं सुना है, आपने सुना हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत दर्द से जन्म दिया करके नहीं बोलती, हालेलुया। वो यहाँ लिखा है कि वो फिर मतलब एक मेरे घर में एक बालक आया करके भूल जाती है, हालेलुया। तो मतलब एक आनंद जो दुख हुआ था, जो पीड़ा हुआ था, वो भूल जाती है क्योंकि मेरे घर में एक मेरा बच्चा आ गया करके, हालेलुया। तो वैसे ही यहाँ वचन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे जीवन में भी दुख होगा, हालेलुया। तो वैसे दुख होगा, लेकिन
जब हमको आनंद मिलेगा तब हम ये दुख को कभी नहीं याद करेंगे। हालेलुया। उतना आनंद जिसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वहाँ कोई मतलब कि वहाँ कोई ऐसा खुद जैसे कि ये प्रकाश को कोई सूर्य नहीं होगा, कोई चांद नहीं होगा करके लिखा, तो वे सब कुछ वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह है सब कुछ। हालेलुया। और वहाँ आनंद ही आनंद है करके, और नर्क में दिया गया है कि वहाँ रोना और दांत पीसना करके लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वैसे तो यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि हम कहीं प्रचार करते समय कि यीशु मसीह बहुत खुशी देता है, बहुत खुशी। कभी कभी हमारे जीवन में अगर हम मसीह के साथ चलता है तो वो हमारे ज़रूरत को जरूर पूरा करता है। हालेलुया। जैसे कि हम जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि ज़रूरत को कैसे कहाँ पूरा किया, जैसे कि 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ ज़रूरत था इसीलिए खाना खिलाया। वहाँ पेट भर के खाना खा के सब बैठे नहीं थे और फिर खाना नहीं दिया, लेकिन वहाँ सुसमाचार सुन के उसके बाद जब बहुत सारे लोग भूखे हो गए तब लोगों को वहाँ चमत्कार के रूप में वहाँ 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी को बहुत 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। तो वहाँ देख सकते हैं कि जरूरत के समय परमेश्वर ने पूरा किया। और जैसा बहुत पुराने नियम में भी बहुत हम देख सकते हैं कि वहाँ जब लाल समुद्र को भी 2 भाग किया तो वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन जब जरूरत के समय खोल दिया। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी आनंद देता है, और हमारे जीवन में जो नीड्स मतलब जो ज़रूरत रहता है वो हमारी वॉइस नहीं पूरा होता, वॉइसेस नहीं पूरा होता, लेकिन जो नीड्स वो परमेश्वर जरूर पूरा करता है। तो यहाँ हम इस बात से हम देखते हैं कि बहुत दुख होगा, और हमारे जीवन में यहाँ मतलब ये पृथ्वी पर या इस दुनिया में शायद दुख के साथ भरे होंगे, आप और मैं बहुत भरे होंगे, लेकिन जब हमको इस विश्वास के साथ जिए और इस विश्वास के अनुसार इस वचन के अनुसार हमने जिया और जब आनंद मिलेगा तब हमको इतना दर्द मतलब यहाँ कष्ट या पढ़ाई हम किसी को नहीं याद करेंगे, लेकिन आनंद ही आनंद मनाएंगे करके। तो वहाँ जब ये चेहरे लोगों को जब आनंद जब यीशु मरने के बाद जी उठने के बाद उनको मिला, तब उसके बाद जब हम देखते हैं कि वहाँ से उसके बाद वहाँ से सेटल करते 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 थोमा इस इंडिया तक आ गया। हालेलुया। तो वो एक आनंद के साथ आया क्योंकि वो जानता है क्योंकि मरने के बाद भी मेरा खुदा आता है। हालेलुया। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वहाँ वो आनंद है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ सेटल करते करते यहाँ तक आया और यहाँ भी बहुत सारा कलीसिया बनाया। हालेलुया। तो जो हमको हमसे वादा करता है वो जरूर हमारे जीवन में पूरा होता है। और दूसरा देखेंगे 16 का 23 से लेकर 24 तक उसका ही Somebody stand and read. That day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Amen. आमीन। हालेलुया। यहाँ लास्ट हम पढ़ते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आनंद पूरा हो जाएगा कि तो हमारा आनंद देख सकते हैं कि किस किस बात में आनंद है। हालेलुया। आप बता सकते हो किस किस बात में आनंद है? और कोई किसी को पता है तो बता सकते हैं किस किस बात में आपको आनंद है? आनंद तो अभी ऐसे देख सकते हैं कि मैं मेरा भी बता सकता हूँ कि मेरे को आनंद जो ऐसा देखा जाए तो दुनिया की बात से भी आनंद है, लेकिन वो आनंद उस समय के लिए। हालेलुया। वो दोनों आनंद में बहुत फर्क है। हालेलुया। जब ये आनंद पूरा हो जाए और मांगो करके लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने बहुत सारा ये मांगने के बारे में वचन पढ़ा है। तो वचन में लिखा है कि जैसे ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। हमारी वॉइस को नहीं पूरा करता, लेकिन नीड्स को पूरा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर परमेश्वर के साथ हम चले तो हमारे ज़रूरत को ज़रूर पूरा करता है। और
ये इसके बाद ये उनको एक प्रार्थना के साथ जीवन जीना करके भी बोलता है। आफ्टर दैट ही आस्क्ड टू लिव विथ प्रेयर, हालेलुया। उनके मतलब प्रार्थना के साथ जीवन जीना करके भी एक आज्ञा भी उनको देता है। और उनको चलो को तो आज हम इस पद में हम भी एक आए हुए हैं और हम भी एक चेला बनने के लिए आए हुए हैं। इसलिए आज का वचन ये वहाँ कितने लोग थे, लेकिन ज़्यादातर चेले के बारे में बताया गया है। वहाँ कितने थे वो मैंने नहीं देखा, लेकिन वहाँ होगा शायद। और लेकिन यहाँ ज़्यादातर चेले लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको आंसर मिलता है, उसके बाद बताता है, फिर यीशु मसीह बताता है, उसके बाद ऐसा करके यहाँ दोनों के मतलब चेले लोगों के बीच में और उनका यीशु मसीह के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है, हालेलुया। तो यहाँ इस बात पे तो आज हम भी चेले बनने के लिए आए हैं। मतलब अलग अलग तरीके से कोई प्रचार करेगा, कोई गाना गाएगा, कोई किसी को मतलब बताएगा और किसी को परमेश्वर के बारे में बताएगा, या अलग अलग तरीके से सेवका है, कोई भविष्यवाणी करेगा, बहुत अलग अलग सेवका है। तो वैसे सबको मिलकर हम बहुत अलग अलग है, लेकिन सब परमेश्वर की सेवा ही करते हैं, हालेलुया। तो सबके हम एक दास के रूप में बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिट है, सब टीचर्स है, अलग अलग बातें हैं, फिर भी परमेश्वर के मतलब परमेश्वर एक ही समान सबको देखता है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके फर्क रहता है कि वो प्रचार करता है वो विश्वास। तो कई बार हमारे जीवन में भी इस सोच है कि यीशु मसीह बहुत वचन भी पड़ा है कि यीशु मसीह आने वाला है करके, लेकिन अभी बहुत साल हो गया और नहीं आ गया, और कई लोगों का विश्वास भी टूट गया है, क्योंकि यीशु मसीह कब आने वाला है करके बहुत लोगों ने प्रचार किया, और बहुत मैंने भी शायद प्रचार किया होगा, और बहुत आपने भी शायद कई जगह में प्रचार किया कि यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह आने वाला तो नहीं आया, और जिसे वैसे ही मैंने पहले भी बताया कि पौलुस की कलीसिया को वैसे ही वहाँ कलीसिया थी, वो लोग एक दूसरे से बात के सब खत्म कर दिए, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आने वाला और क्या रख के भी क्या करेंगे करके। तो वहाँ यीशु मसीह जब एक दिन 1000 साल के बराबर जैसे है, तो यीशु मसीह अब उनका मतलब सबका उनका बनाया, तो उनका अधिकार है, और उनको कब आना है वो उनका अधिकार है। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि इधर एक एग्जाम्पल के रूप में कि इधर डायरेक्टर डैनियल सर है, तो उनको मतलब ये मिनिस्ट्री को क्या करना है और क्या नहीं करना है वो उनको मालूम, क्योंकि हम नहीं कर सकते कि उनको ये बंद करवा दो, अभी सब कुछ नहीं करवा दो करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथों में है। तो वैसे ही मतलब कब आएगा वो परफेक्ट नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह जरूर आएगा। और यहाँ भी चले लोगों को बताया तो दिन नहीं बताया, 3 दिन में आऊँगा करके, लेकिन यहाँ वचन में पढ़ते हैं जब कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, हालेलुया। तो थोड़ी देर में क्यों शब्द उपयोग किया? नहीं तो सीधा सीधा बोलना था उतना दिन में मैं आऊँगा करके, लेकिन यीशु मसीह जब आने के समय परफेक्ट समय नहीं बताता, लेकिन वहाँ जब बहुत जो बुआरी के दृष्टांत में भी पढ़ते हैं कि वहाँ तेल लेकर जो तैयार नहीं रही थी उनको यीशु मसीह ने नहीं पहचाना। तो वैसे ही यहाँ भी देख सकते कि वैसे इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह समय यहाँ परफेक्ट समय नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह जरूर आएगा। यहाँ भी सिर्फ उसके बीच में शायद कितना दिन होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, तो उसके बाद कितना दिन बीच में हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके वो यीशु मसीह उसी समय फिर थोड़े समय के बाद उनको दिखाया और मिला, और उनको फिर सब कुछ मतलब पवित्र आत्मा को देकर और स्वर्गारोहण गया। तो इसी विश्वास से उनको देखा और सुना और महसूस किया। और थॉमस जो चेला जो थॉमस नाम का था, उसने तो जब तक मैं उसके हाथ में जब कीड़े जो नील जो अंदर मतलब जो ठोका है वहाँ जब तक मैं उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा करके। तो वहाँ यीशु मसीह ने बोला कि आकर देख ले, और मतलब उंगली डाल के देख ले करके बोला, तब उनका विश्वास बढ़ गया और बोला कि तू ही मतलब हे प्रभु करके बोला। और उसके बाद वहाँ से सेवकाई में निकल गया, और पहले भी सेवकाई करता था लेकिन वहाँ से निकल गया। तो इस वचन के हमको यही सीख मिलता है कि परमेश्वर जैसे कि परमेश्वर हमारे मतलब ज़रूरत को और जब ज़रूरत को भी पूरा करता है, और जिसे
जिस प्रकार से हम उसमें पक्का विश्वास करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विश्वास भी गिर गया। कई लोग फिर से मतलब मच्छी मारने के गए, वैसे हमने बहुत सारे कुछ पढ़ा है। लेकिन यहाँ विश्वास हमारे एक यही वचन हमको यही प्रोत्साहन करता है कि हमें विश्वास में कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास ही हमारा सब कुछ। अगर विश्वास के साथ जिया तो हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। और विश्वास के साथ काम किया तो हमको ज़रूर उसका फल मिलता है। हालेलुया। और यहाँ उसमें जो पढ़े कि जब दुख तो जब हम पढ़े 16 का 20 से लेके 22 में, जब वहाँ डिसेबल सोरो एंड जॉय, मतलब कि उसके बाद जब कितना दुखी हुआ उसके बाद कितना आनंदित हुआ। तो वैसे ही आज शायद हम दुखी होंगे, आज शायद हम निराश होंगे, लेकिन जब मतलब जो स्वर्ग में जब जाने के बाद वो जो आनंद मिलता है, उसके बाद सब कुछ कोई नहीं याद करेगा कि हमारा मतलब हमने ये मतलब दुख किया था या शिकायत में गए थे तो उनको दुख हुआ, उनको शायद कई जगह में जाने के लिए पैसा नहीं मिला होगा, नहीं तो फिर आने के लिए पैसा नहीं मिलता होगा, नहीं तो बाइबल ट्रेनिंग में आने के लिए पैसा नहीं मिलता होगा। ऐसा दुख है वो हम अभी भी याद करते हैं, मतलब अभी भी याद रखते हैं, लेकिन जब आनंद मिलेगा तब सब कुछ भूल जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ हम वैसे ही देखा तो हम और यहाँ 23 में भी 23 में और ये 23 में बोला कि प्रार्थना के साथ भी जीवन जरूर बिताना। हालेलुया। प्रार्थना के साथ प्रार्थना भी जिस प्रकार से जैसे प्रार्थना करते हैं वो खुद के अनुसार है, जैसे कि नहीं बोल सकते कि 1 घंटा तक 2 घंटा तक, लेकिन वो खुद का प्रार्थना है। जिस प्रकार से दो व्यक्ति का जो प्रार्थना है तो अलग अलग प्रार्थना करते हैं कि ये इसने तो क्या किया कि इसने ये गलती करता है, उसके जैसा मुझे मत बनाना करके एक ने प्रार्थना की, और एक ने प्रार्थना किया कि मैं पापी हूँ, मैं एक ऐसा हूँ करके मुझे क्षमा करके, तो उनका प्रार्थना सुन लिया। लेकिन जो जिसने प्रार्थना किया कि उसके जैसा मत बनाना, मतलब उससे अच्छा खुद समझ रहा है, तो ऐसे हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए कि हम इससे भी बेहतर है करके। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ बेहतर इस दुनिया में अगर कोई है तो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसने हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो सब कुछ कहीं भी ऐसा उनका पाप के बारे में नहीं किया या यीशु मसीह ने ऐसा किया करके नहीं लिखा, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा है। तो हम वैसे ही यहाँ प्रार्थना के साथ जीवन बिताना, अगर कैसा भी सिचुएशन होगा या कैसे भी हमारे जीवन में कुछ भी अगर ऐसा खराब सिचुएशन होगा तो प्रार्थना के साथ भी जीवन बिताना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह जब मरने से पहले भी उन लोगों को चेतावनी दिया और फिर उसके बाद मरने के जी उठने के बाद भी उन लोगों को ये बात बताया, और वहाँ 6 लोग ज़्यादातर ये बात 6 लोग पर जोर दिया जाता है। तो ये बात हमारे जीवन में भी आज हम भी अगर आज के संदर्भ में देखेंगे तो हम भी एक चेला बनने के लिए आए हैं। हालेलुया। सब चेला बनने के लिए आए हैं और कुछ न कुछ शिकायत करेंगे, और तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ये होना और विश्वास के साथ जीना हो। क्योंकि खुद अगर कंफ्यूज में होकर जिएगा तो प्रचार करते हुए आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद प्रचार करते हुए लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज में जी रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारा प्रचार किया लेकिन यीशु मसीह आएगा या नहीं आएगा ऐसा, लेकिन ऐसा डाउट में कभी भी नहीं जीना है, क्योंकि यीशु मसीह जो बोलता है वो होता है। क्योंकि हम पुराने नियम में देखते हैं कि उत्पत्ति में जो बोला वो हुआ। हालेलुया। वो तुरंत हुआ। हालेलुया। तो वैसे ही ये अगर हमको यीशु मसीह बोल के गया तो वो होगा। और यहाँ एग्जाम्पल के रूप में भी हम देख सकते हैं कि 6 लोगों को बोला और हुआ। हालेलुया। तो इस और लास्ट में भी जब वो जो वचन थोड़ा टॉपिक से अलग है, मांगोगे तो जो तुम्हें दिया जाएगा करके, तो वो भी एक हमको सीख मिलता है कि हम मांगते हैं उसके अनुसार मांगेगा तो जरूर देता है। जो हमको जो ज़रूरत है वो परमेश्वर पक्का पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि यह बहुत अनुभव है